जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोगों का टॉपिक है क्लास का थ्योरी का रीनल इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। Electrolyte balance. The body contains a large variety of ions, electrolyte, which perform a variety of functions. हम लोगों को पता है इस सब का, ये हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। Some ions assist in the transmission of electrical impulse along the cell membrane in neuron and muscle. Other ions help to stabilize the protein structure in the enzymes. Still others aid in releasing hormone from endocrine gland. All of the ions in the plasma contribute to osmotic balance that control the environment of water between the cell and their environment. मतलब क्या है कि बॉडी में लार्ज वैरायटी के आयंस और इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, उनके डिफरेंट फंक्शंस हैं, लेकिन उनका जो मतलब उन्होंने एक बैलेंस क्रिएट किया हुआ है बिटवीन द सेल एंड आउटसाइड द सेल, ठीक है। और उसको अब हमने पढ़ना है कि रीनल सिस्टम जो है क्या कंट्रीब्यूशन करता है इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस में। इलेक्ट्रोलाइट इन लिविंग सिस्टम इंक्लूड सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट, मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक, आयरन, manganese, molybdenum, copper, chromium. In terms of the body functioning, six electrolytes are important, which are the sodium, potassium, chloride, bicarbonate, calcium and phosphate. मतलब बाकी जो है वो माइनर में आ जाते हैं, और हम लोग हैं इनका बार बार इनका जो है जिक्र करते हैं, मतलब पढ़ते हैं इसका सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, कैल्शियम और फॉस्फेट। रोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स है these six ions, मतलब ये जो अभी हम लोगों ने पीछे पढ़े हैं, aid in the nerve excitability, endocrine secretion, membrane permeability, buffering body fluids, and controlling the movement of fluid between the compartments. These ions enter the body through digestive tract. More than 90% of the calcium and phosphate that enter the body is incorporated into the bones and teeth. मतलब ये देखिए कितना इम्पोर्टेंट मिनरल, हम सबको पता है कि कैल्शियम और फास्फोरस बॉडी बोन्स के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, तो यही इन्होंने बताया कि मोर देन 90% ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट एंटर द बॉडी इज इनकॉर्पोरेटेड इनटू द बोन्स एंड टीथ, with bones serving as mineral reserve for these ions. In the event that calcium and phosphate are needed for other functions, bone tissue that can be broken down to supply the blood and other tissues with these minerals. मतलब ये उसका रिजर्वायर के तौर पे एक्ट करता है, और ये बाकी जो होते हैं मिनरल्स उनको सेव करता है उधर बोन्स में। Phosphate is a normal constituent of nucleic acid. Hence, blood level of phosphate will increase whenever nucleic acids are broken down. ठीक है, ये भी हमें पता है फास्फेट उसका इम्पोर्टेंट पार्ट है। जब भी न्यूक्लिक एसिड जाहिर है ब्रेक डाउन करेगा तो फास्फेट के जो है वो लेवल जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। एक्सक्रीशन ऑफ आयंस अकर मेनली थ्रू द किडनी with lesser amount lost in sweat and feces. Excessive sweating may cause a significant loss, especially of sodium and chloride. Severe vomiting or diarrhea will cause a loss of chloride and bicarbonate ion. Adjustment in respiratory and renal function allow the body to regulate the level of these ions in extracellular fluid. Regulation of sodium and potassium. Sodium is reabsorbed from renal filtrate and potassium is excreted into the filtrate in the renal collecting tubule. ये हम लोगों ने काफी डिटेल में जो लास्ट लेक्चर था हम लोगों का उसमें हम लोगों ने पढ़ा था रीअब्जॉर्प्शन में और सिक्रीशन में, मतलब यूरिन फॉर्मेशन में कि कौन से पार्ट से क्या रीअब्जॉर्ब होगा, कौन से मतलब एक्सक्रीट आउट होगा। तो ये उसी को जो है मैंने रिपीट किया है कि सोडियम इज रीअब्जॉर्ब फ्रॉम द रीनल फिल्ट्रेट and potassium is excreted into filtrate in renal collecting tubule. The control of this exchange is governed principally by two hormones, aldosterone and angiotensin 2. इसको भी हम आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे। एल्डोस्टेरोन ये हार्मोन है, it increase the excretion of potassium and cause the reabsorption of the sodium in distal tubule.
Aldosterone is released if the blood level of potassium increase, if the blood level of sodium severely decrease, or if the blood pressure decrease. मतलब क्या है, इसने तब रिलीज होना है जब ब्लड प्रेशर बॉडी का लो हो जाएगा या फिर सोडियम की अमाउंट जो है लो हो जाएगी, तो फिर ये सिक्रीट आउट होगा टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ सोडियम एंड टू कॉज द इंक्रीज इन द ब्लड प्रेशर. Its net effect is to conserve and increase the water level in the plasma by reducing the excretion of sodium and thus water from the kidney. In a negative feedback loop, increase osmolarity of extracellular fluid, which follow aldosterone stimulated sodium absorption, inhibit the release of hormone. ये यहाँ पे नजर नहीं आ रही, मैं आपको शायद मैं इस स्लाइड को सेट करना भूल गई, ये मैं आपको बाद में दिखा दूंगी. ये है एंजियोटेंसिन 2. ये रुबैका अफजल, आप अपनी वीडियो ऑफ करें. Angiotensin 2 cause the vasoconstriction and an increase in systemic blood pressure. This action increases the glomerular filtration rate, resulting in more material filtered out of the glomerular capillaries and in Bowman capsule. Angiotensin 2 also signal an increase in the release of aldosterone from adrenal cortex. मतलब angiotensin 2 ने vasoconstriction करवानी है, increase जिससे क्या होगा, systemic blood pressure जो है वो increase कर जाएगा. This action increase the glomerular filtration rate, resulting in more material filter out of glomerular capillaries and into Bowman capsule. Angiotensin 2 also signal an increase in the release of aldosterone from adrenal cortex. मतलब एल्डोस्टेरोन इंक्रीज होगा तो क्या होगा, अल्टीमेटली ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा, सोडियम की रीएब्जॉर्प्शन हो जाएगी. ठीक है. In the distal convoluted tubule and collecting duct of kidney, aldosterone stimulate the synthesis and activation of sodium potassium pump. मतलब सोडियम पोटेशियम पंप को एक्टिवेट करेगा, जिससे क्या होगा, पोटेशियम की एक्सक्रीशन होगी और सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन होगी. सोडियम पास फ्रॉम द फिल्ट्रेट into and through the cell of tubule and duct into the extracellular fluid and then into the capillaries. Water follows the sodium due to the osmosis. Thus, aldosterone causes an increase in the blood sodium level and thus the blood volume. Aldosterone's effect on potassium is the reverse of that sodium. मतलब क्या होगा, इस अगर सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन हो रही है तो रिवर्स क्या होगा, पोटेशियम की एक्सक्रीशन होगी. अंडर इट्स इन्फ्लुएंस एक्सेस पोटेशियम इज पम्प्ड इनटू द रीनल फिल्ट्रेट फॉर द एक्सक्रीशन फ्रॉम द बॉडी. ठीक है. ये होगा मतलब किडनी से रेनिन जो है, ब्लड से क्या होगा, एंजियोटेंसिन आ रहा है. ठीक है. और किडनी से क्या है, एंजियो रेनिन आ रहा है. वो क्या करेगा, एंजियोटेंसिन की कन्वर्शन करवा देगा एंजियोटेंसिन 2 में. और पीछे से क्या आ रहा है, लीवर से आ रहा है, एंजाइम आ रहा है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम. वो एंजियोटेंसिन 2 को एल्डोस्टेरोन में एंजियोटेंसिन 2 जो है वो एल्डोस्टेरोन की सिक्रीशन करवाएगा. वो जो एल्डोस्टेरोन है वो जो नेफ्रॉन पे एक्ट करेगा और कॉज करेगा सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन और वाटर की रीअब्जॉर्प्शन इन द नेफ्रॉन और पोटेशियम की जो है एक्सक्रीशन इन द फिल्ट्रेट टू एक्सक्रीट आउट फ्रॉम द बॉडी. ठीक है. ये रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम है, ये मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में अभी डिटेल से आपको करवाती हूँ. रेगुलेशन ऑफ कैल्शियम एंड पोटेशियम. पहले हम लोगों ने सोडियम की कैल्शियम एंड फॉस्फेट, पहले हमने सोडियम और पोटेशियम की पढ़ी है. अब कैल्शियम और फॉस्फेट पे आ गए. कैल्शियम एंड फॉस्फेट बोथ रेगुलेटेड थ्रू द एक्शन ऑफ 3 हार्मोन्स: पैराथायराइड हार्मोन, डाइहाइड्रोक्सी विटामिन डी, कैल्सिट्रियोल and calcitonin. All three are released or synthesized in response to the blood level of the calcium. Parathyroid hormone is released from parathyroid gland in response to a decrease in the concentration of blood calcium. The hormone activates osteoclast to break down bone matrix and release inorganic calcium phosphate salt.
Parathyroid hormone also increases the gastrointestinal absorption of dietary calcium by converting vitamin D into dihydroxyvitamin D and activate form of vitamin D that intestinal epithelial cell require to absorb calcium. मतलब इसने क्या करना है, पैराथायराइड हार्मोन जो है वो पैराथायराइड ग्लैंड से जो है वो रिलीज हो रहा है। उसने क्या करना है कि जब भी बॉडी में ब्लड कैल्शियम का लेवल डिक्रीज हो जाएगा तो पैराथायराइड ग्लैंड ने पैराथायराइड हार्मोन जो है वो सिक्रीट आउट करना है। उसने क्या करना है, एक्टिवेट करना है ओस्टियोक्लास्ट को टू ब्रेक डाउन द बोन मैट्रिक्स एंड रिलीज। उसने ओस्टियोक्लास्ट को ना एक्टिवेट करना है। ओस्टियोक्लास्ट क्या है, वो सेल्स हैं जो बोन में होते हैं, वो ब्रेक डाउन द बोन मैट्रिक्स करेंगे टू रिलीज द कैल्शियम, जिससे क्या होगा कि कैल्शियम का लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, कैल्शियम फॉस्फेट सॉल्ट का। और इसके अलावा इसने क्या करना है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन ऑफ मतलब जो भी हम लोग ले रहे हैं, डाइट ले रहे हैं, उसमें से डाइटरी कैल्शियम जो है उसको उसकी एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करवाना है। वो किस तरह करवाना है, जो डाईहाइड्रोक्सी जो विटामिन डी है उसकी कन्वर्शन करनी है इसने डाईहाइड्रोक्सी विटामिन डी, जो कि एक्टिव फॉर्म है विटामिन डी की। जब ये एक्टिव डाईहाइड्रोक्सी विटामिन डी होगा बॉडी में तो फिर क्या होगा कि फूड में से कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। समझ आइए आपको, मतलब मैं आपको दोबारा एक बार रिपीट कर देती हूँ कि जब भी बॉडी में कैल्शियम का लेवल लो होगा तो पैराथायराइड ग्लैंड में से पैराथायराइड हार्मोन जो है वो सिक्रीट आउट होगा। उसने क्या करना है, उसने बोन में जो ओस्टियोक्लास्ट सेल है उसको एक्टिवेट करवाना है, जिसने बोन मैट्रिक्स में से कैल्शियम फॉस्फेट जो साल्ट है उसको रिलीज करवाना है बाय द ब्रेकडाउन ऑफ बोन मैट्रिक्स। उससे क्या होगा, कैल्शियम का लेवल इंक्रीज होगा। और इसके अलावा इसने क्या करना है, जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हमारी एब्जॉर्प्शन है डाइटरी कैल्शियम की उसकी इंक्रीज करवानी है। वो कैसे करवानी है, विटामिन डी की जो कन्वर्जन होती है डाईहाइड्रोक्सी विटामिन डी उसमें करवानी है उसने कन्वर्जन, जो जिसकी प्रेजेंस में कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन जो है वो इंक्रीज होती है। ठीक है। A parathyroid hormone raises the blood calcium level by inhibiting the loss of the calcium through the kidney. Parathyroid hormone also increases the loss of phosphate through the kidney. Calcitonin is released from thyroid gland in response to elevated blood calcium level of calcium. The hormone increases the activity of osteoblast. Osteoblast क्या है, which remove the calcium from the blood and incorporate calcium into the bony matrix। मतलब जब कैल्सिटोनिन है इसने क्या करना है, ओस्टियोब्लास्ट सेल है जो कि किलिंग सेल है, कैल्शियम को उन्होंने रिमूव करना है और उसको इनकॉर्पोरेट करना है दोबारा से बोन मैट्रिक्स में। मतलब ओस्टियोक्लास्ट ने बोन मैट्रिक्स में से निकालना है और ओस्टियोब्लास्ट ने दोबारा उसको इनकॉर्पोरेट कर देना है इनटू बोन मैट्रिक्स। थैंक यू। ये था हमारा रीनल इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस।